Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen Amma ba'd Fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Here I am, your host Dr. Jameel Rathore, and you are watching your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format and discipline of our program, first we start today's lesson with recitation of Holy Quran, and our today's lesson consists of verse number 1 to 3 of Suratul Fatir of the 22nd part of Al-Quran. And you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, when Quran is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. صدق الله العظيم. Dear viewers, we were listening the holy verses of Al-Quran, and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of Al-Quran. And now we proceed with its word-by-word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran. Alhamdulillahi Alhamdulillahi
फातिरिस समावाति फातिरिस समावाति वल अर्दि जाइलिल मलाइकति गुसुलन उली अजनिहतिन मथना वसुलास वरुबाዕ यज़ीदु फिल खल्क़ि मा यशा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमतिन फला मुमसिक लहा वमा युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बादिह वहुवल अज़ीज़ुल हकीम या अय्युहन नासु उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द ला इलाहा इल्ला हु फ़अन्ना तुफ़कून। Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very, very important segment of our program, because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse, and these verses become prominent on your television screen in Arabic calligraphic, as well as we translated or romanized these verses, particularly for those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this exercise, followed by Urdu and English translation, and in the end, inshallah, we also give you the brief explanation of these holy verses. So keep on watching this program and stay with us. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'.
अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्दि जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहतिम मस्ना मस्ना व सुलास व रुबा। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो पैदा करने वाला है आसमानों और ज़मीन का, जिसने बनाया है फरिश्तों को पैगाम रसां जो परदार बाजुओं वाले हैं, किसी के 2, किसी के 3 और किसी के 4। All praise to Allah, the maker of the heavens and the earth, the appointer of the angels as messengers, who have 2, 3 and 4 wings. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. यज़ीद फिल खल्क़ मा यशा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो ज्यादा करता है बनावट में जो चाहता है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। He increases in creation what He pleases. Undoubtedly, Allah is potent over everything. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ما यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमतिन फला मुमसिक लहा। इन उर्दू, जो अता फरमाए अल्लाह ताला लोगों को अपनी रहमत से तो उसे कोई रोकने वाला नहीं। In English, whatever mercy Allah opens for mankind, none there is to withhold it. وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. वमा युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बअदिह वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। इन उर्दू, और जो रोक दे तो उसे कोई देने वाला नहीं उसके रोकने के बाद, और वही सब पर गालिब है, बड़ा दाना है। In English, and whatever He withholds, none there is to release it thereafter, and He, the only dignified, the wise. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. या अय्युहन्नास उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि यर्ज़ुकुकुम मिनस समाइ वल अर्द। ऐ लोगो, याद रखो अल्लाह ताला की नेमत को जो उसने तुम पर फरमाई। भला ये तो बताओ, क्या अल्लाह के बगैर कोई और खालिक भी है जो तुम्हें रिस्क देता है आसमान और जमीन से?
O mankind, remember the favor of Allah upon you. Is there any creator besides Allah who provides for you from the heavens and the earth? لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. لا إله إلا هو فأنا تؤफकून. नहीं कोई माबूद बजुज उसके, सो उससे मुंह फेर कर किधर जा रहे हो? In English, there is no God but He. Whither then are you turning back? नाज़रीन किराम, हमारा आज का सबक अपने इख्ताम को पहुँचा। इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला अपनी हम्द व सना बयान करते हुए आगाज़ फरमा रहा है, और आज एक नई सूरह मुबारक यानी सूरह फ़ातिर का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। सूरह फ़ातिर का आगाज़ भी कलमा हम्द से हुआ है। जिस तरह मुसहफ़ क़ुरआनी की पहली सूरह मुबारक अल-हम्द से आगाज़ हुआ, फिर 7वें सिपारे में अल-हम्द से सूरह मुबारक का आगाज़ हुआ, सूरह कहफ़ का आगाज़ अल-हम्द से हो रहा है, इसी तरह सूरतुस सबा का आगाज़ अल-हम्द से हो रहा है। अब सूरह फ़ातिर का आगाज़ भी अल-हम्द से हो रहा है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला जगह जगह पर अपनी हम्द, अपनी तस्बीह और तहलील का ज़िक्र करके इंसान को बताना चाहता है कि अगर राज़ी करने के लायक कोई ज़ात है, अगर रुकू व सुजूद या तारीफ़ के लायक कोई ज़ात है, तो वह अल्लाह करीम की ज़ात है। हमें उसी की तारीफ़ व तौसीफ़, उसी की तस्बीह व तहलील करनी चाहिए। अगर वक्ती तौर पर ये जो हमारे इर्द गिर्द बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, साहिब हैसियत, साहिब दौलत, यकीनन इनकी तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन पेश नज़र ये होना चाहिए कि असल तारीफ़ के लायक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुबारक है। और यहाँ पर भी मौजू वही गुज़श्ता से पैवस्ता है। उस सूरह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने सबा के वाक़यात को बताकर कि किस किस तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला अज़ीम व कबीर है, अपनी किबरियाई को बयान किया। यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि एक कुफ़ार मुशरिकीन मक्का, कोई तुम अबू जहल के ग्रुप में जा रहे हो, कोई अबू लहब के ग्रुप में जा रहे हो, कोई अबू सुफियान के पास जा रहे हो, कोई वलीद और उतबा के ग्रुप में जा रहे हो, ये सोच कर कि ये बड़े बड़े चौधरी हैं, ये बड़े बड़े पंडित हैं, ये बड़े बड़े पुजारी हैं और ये बड़े बड़े दौलत वाले हैं, तो इनका कुछ बनने वाला नहीं है। इनकी तारीफ़ करने से कोई कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। अगर तारीफ़ के लायक कोई ज़ात है तो वह अल्लाह करीम की ज़ात है, और इसलिए है कि वह आसमान और ज़मीन को उसी ने तख्लीक किया है, और वो जिसे चाहता है उसी तरह बना दिया करता है। तुम कहते हो फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियाँ हैं। फ़रिश्तों को अल्लाह ने पर आता फरमाए, किसी को 2 आता फरमाए, किसी को 3 आता फरमाए, किसी को 4 आता फरमा दिए। ये अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक है। किसी को चाहता है वो अपना लिविंग ऑर्गेनिज़म यानी रेंगने वाले रेप्टाइल्स बना दिया करता है, किसी को मेमेलियन से बना दिया करता है, किसी को सांप बिच्छू बना देता है, किसी को वो जंगलात में चलने वाले फिरने वाले जंगली जानवर बना दिया करता है, किसी को इंसान बना दिया करता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरी तारीफ़ करो ए इंसान, इसलिए कि मैं चाहता था तुम्हें बिच्छू बना देता, तुम्हें सांप बना देता, तुम्हें सूअर बना देता, तुम्हें कुत्ता बिल्ला बना देता, और बना देता तो तुम क्या कर लेते। यकीनन मैंने तुम्हें इन तमाम से आला मखलूक यानी इंसान बनाया, तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए। लिहाजा एक अहले ईमान शुक्र अदा करता है कि रब्बे करीम तेरा कितना बड़ा करम है कि तूने हमें जानदारों में बनाया और फिर अपनी अफजलुल मखलूक़ात इंसान में बनाया, और उन सब से बढ़कर तेरा शुक्र ये है कि तूने हमें ग़ुलामान मुस्तफ़ा में बनाया। तो यकीनी तौर पर यह बहुत बड़ी नेमत है, ईमान से बड़ी नेमत कोई नहीं मिल सकती, और हम अल्लाह की नेमतों का अगर शुमार करना चाहें कर भी नहीं सकते। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अपने इल्मुल आदात तो ख़त्म कर लोगे लेकिन अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते। अल्लाह ने सारी नेमतें दी और यकीनन अल्लाह का शुक्र है, लेकिन सबसे बड़ा शुक्र ये है कि नेमत उज़्मा यानी अल्लाह ने अपने हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बनाया, आपका उम्मती बनाया। ये बहुत बड़ी नेमत है, इस दुनिया में भी काम आती है, कब्र में भी काम आती है, हश्र में भी काम आती है, और यकीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला
से दुआ मांगते हैं कि रब्बे करीम ये जो सारी नेमतें हैं ये हमें इनसे भी हिस्सा अता फरमा, और जिस तरह नबी की ग़ुलामी में तूने हमारी निस्बत को और हमारी पहचान बनाई है, अल्लाह इस निस्बत और पहचान को यहाँ पर भी कायम रख, क़ब्र में भी यही पहचान हो, हश्र में भी यही पहचान हो, तो देखने वाले कह दें कि देखो वो नबी का ग़ुलाम आ रहा है। यकीनन अगर ये ऐलान और ये नारा बुलंद हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या ग़ुलामी की सनद मिल सकती है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में उसकी तस्बीह व तहलील, उसकी तहमीद व तक़दीस के नग़मे तराने पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, you are watching your favorite program Iqra, and I am your host Dr. Jamil Rathor. In this particular religious Quranic program, we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format and discipline of our program, first we shall give you the recitation of holy verses. And our today's program consists of verse number 4 to 8 of Surah Al-Fatir of the 22nd part of Al-Quran. And you are requested to listen to these verses according to the canon of Sharia, according to the teaching of the Quran, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, when Quran is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير.
أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء صدق الله العظيم. Dear viewers, we were listening the holy verses of Al-Quran, and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of Al-Quran. And now we proceed with its word-by-word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زجن له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء
Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very, very important segment of our program, because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse, and these verses become prominent on your television screen in Arabic calligraphic, as well as we translated or romanized these verses, particularly for those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this exercise, followed by Urdu and English translation, and in the end, inshallah, we also give you the brief explanation of these holy verses. So keep on watching this program and stay with us. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. In Urdu, और ऐ हबीब, अगर ये आपको झुटला रहे हैं तो कोई नई बात नहीं, आपसे पहले भी रसूलों को झुटलाया गया और आखिरकार अल्लाह की तरफ ही सारे काम लौटाए जाते हैं. In English, if they belie you, then no doubt messengers have been belied before you, and all affairs return to Allah. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ऐ लोगो, याद रखो, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है, बस धोखे में न डाल दे तुम्हें ये दुनियावी जिंदगी और न फरेब में मुब्तला कर दे तुम्हें अल्लाह के बारे में वो बड़ा फरेबी. O mankind, undoubtedly the promise of Allah is true. Let never then deceive you the life of the world, and let not the great deceiver deceive you regarding the serenity of Allah. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. In Urdu, यकीनन शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे अपना दुश्मन समझा करो. वो फकत इसलिए सरकशी की दावत देता है अपने गुरोह को ताकि वो जहन्नमी बन जाए. In English, undoubtedly the devil is your enemy. He only invites his party that they be among the companions of the hell. الذين كفروا
عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनके लिए सख्त अजाब है, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए मग़फ़िरत और बहुत बड़ा अज्र है. In English, for the infidels there's severe torment, and those who have believed and have done good works, for them is forgiveness and great reward. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. In Urdu, बस क्या वो शख्स जिसके लिए मुज़य्यन कर दिया गया है उसका बुरा अमल और वो उसको खूबसूरत नजर आता है, उसके लिए आप आजुर्दा क्यों हों? बेशक अल्लाह गुमराह रखता है जिसको चाहता है और हिदायत बख्शता है जिसको चाहता है. In English, will he in whose sight his evil work has been adorned so that he thought it good be like him who is guided? Therefore Allah leads astray whom he pleases and guides whom he pleases. नाज़रीन किराम, हमारा आज का सबक अपने इख्ताम को पहुँचा. इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु इरशाद फरमाता है कि हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कोई झुटलाया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है. आप गमगीन हो रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है. यकीनन हमारे पिछले अम्बिया किराम आए, उनको झुटलाया गया, बल्कि कुरान तो कहता है कि उनमें से कुछ लोगों को कत्ल भी कर दिया गया. चुनाचे अम्बिया किराम को बाकायदा अज़ियत दी गई, उनको झुटलाया गया, उनका इनकार किया गया. कुछ जालिमों ने अम्बिया किराम को कत्ल भी कर डाला, लेकिन उसके बावजूद वो ईमान नहीं लाए. तो अल्लाह फरमाता है गमगीन होने की बात नहीं है. पिछले अम्बिया किराम पर जो ईमान नहीं लाए थे, हमने उन्हें आज़ाब भेजकर नेसतो नाबूद कर दिया था, उन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दिया था, उनकी स्टोरी को एंड कर दिया था. प्यारे मुस्तफ़ा, अगर इन्होंने आपका इनकार किया, व इन युकद्दिबूका फ़क़द कुद्दिबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, तो यकीनी तौर पर ये हमारी तरफ ही लौटाए जाएंगे, हम इनको हलाक व बर्बाद करके छोड़ेंगे. यकीनन जो नबी की तकज़ीब किया करता है, इहानत व गुस्ताखी किया करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला शैतान जैसे आबिद और मुअल्लिम की इल्मी वसीरत को और उसके सजदों को मुंह पर दे मारता है. तो ये जो बड़े बड़े आलिम ख़ुद को कहें, या बड़ा बड़ा स्कॉलर ख़ुद को कहें, या ख़ुद को बड़ा इंटेलेक्चुअल कहें, या साइंसदान कहें, या बड़ा मुफक्किर कहें, मुदब्बिर कहें, मुफस्सिर कहें, लेकिन अगर नबी की तकज़ीब कर दी, इहानत कर दी, गुस्ताखी कर दी, तो फिर उसके लिए कोई जाए पनाह नहीं हो सकती. यकीनन अल्लाह का अज़ाब उस पर ज़रूर नाज़िल हुआ करता है. और उसके बाद हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि क़यामत हक़ है, फ़रेब में मुब्तला मत हो जाना इस दुनिया की ज़ेब व आसाइश और इस दुनिया की जीनत को देखकर कि दुनिया में जो मेरा पड़ोसी है बड़ा
खाता पीता है, या ये मत समझना कि बराबर वाले पड़ोसी मुल्क में या फ़लाँ मुल्क के अंदर बड़ी लग्जूरियस लाइफ है और बड़ी वहाँ पर ज़िंदगी आसान है। फ़रेब में मुब्तला मत हो जाना। ये दुनिया तो आखिरत की खेती है, जो आखिरत है उसको अच्छा करो। ये दुनिया तो फ़ानी है, तुम सबका इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है मौत आकर रहेगी, लेकिन मौत इस ज़िंदगी कितनी है, 60-70 साल, 80 साल, 100 साल हद है। लेकिन जो क़यामत की ज़िंदगी होगी वो लाफ़ानी होगी, वो अबदी ज़िंदगी होगी, वो ख़त्म नहीं होगी। तुम्हें चाहिए उसको अच्छा करो। और फिर फरमाया कि शैतान के फ़रेब में मत आना, वो जहन्नमी है, और यकीनन जो जहन्नमी हो, जो उसके साथ चला जाएगा वो भी जहन्नमी हो जाएगा। ये हमें यहाँ पर तरीक़ा बताया जा रहा, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो जिसके साथ चला जाता है उसी कौम में हो जाता है। चुनांचे कोई अगर यजीद के साथ था तो वो यजीदी हो गया, कोई हुसैन के साथ था तो वो हसनी हो गया। तो ये अल्लाह ने पहचान बता दी है कि अगर बुरे के साथ बुरे की सोहबत इख्तियार करोगे, तुम कितने ही पारसा क्यों ना हो, लोग कहेंगे कि जनाब ये भी बुरा है। और आप जानते हैं कि बद बुरे से बद ज़्यादा बुरा होता है। चुनांचे अब अगर बुरे के साथ आप महफिल और संगत रखते हैं, वो मुआशरा उसे बुरा समझता है, तो आप बज़ाहिर उसके साथ बैठकर कुछ गपशप लगा रहे हैं, लेकिन लोग देखने वाले कहेंगे कि ये भी बुरा है। बिआई नहीं, इसी तरह शैतान जहन्नमी है। अगर कोई शैतान का पैरोकार बन जाएगा, उसका चेला बन जाएगा, शैतान जहन्नम में जाएगा, उसे भी अपने साथ ले डूबेगा। तो बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमें मोमिनीन के साथ रहें, इसलिए कि जहन्नम में शैतान के साथ रहने वालों की मग़फ़िरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई इस दुनिया में ईमान ले आया और नेक अमल करता रहा, तो अल्लाह फरमाता है कि उसके लिए बख्शिश व मग़फ़िरत का वादा है, और यकीनन उसकी शफ़ाअत की जाएगी, और इज़्न शफ़ाअत अल्लाह अपने हबीब को अता फरमाएगा, और यकीनन फिर उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत का सामान भी होगा। जन्नत में आसाइशें मिलेंगी, वो सारी लग्जूरियस लाइफ जो इस दुनिया की कुछ भी नहीं है, उससे लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा वो लाइफ और वो आसाइश और वो इश्रत हमें वहाँ दी जाएगी कि जिसका तसव्वुर फ़कत हम कर सकते हैं कुरान पढ़ के, लेकिन उसकी हकीकत का इदराक करना बड़ा मुश्किल है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में दुनिया में राह रास्त पर, सिरात मुस्तकीम पर और एक बेहतरीन पाथवे पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। और यकीनन बेहतरीन रास्ता हमारे आका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपके अस्हाब कुब्बार का और अहले बैत अतहार का है। अल्लाह हमें उनके नुक़ूश पा की इत्तिबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, you are watching your favorite program Iqra. I am your host Dr. Jamil Rathor. In this particular religious Quranic program, we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format and discipline of our program, first we shall give you the recitation of holy verses. And our today's program consists of verse number 8 to 11 of Suratul Fatir of the 22nd part of Al-Quran. And you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, when Quran is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد
بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه صدق الله العظيم. Dear viewers, we were listening the holy verses of Al-Quran, and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of Al-Quran. And now we proceed with its word-by-word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran. فَلَا تَذْهَبْ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا
जमीआ इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिबु यसअदुल कलिमुत तय्यिबु यसअदुल कलिमुत तय्यिबु वल अमलुस सालिहु यरफअुहु वल्लज़ीना यमकुरूनस्सय्यिआति लहुम अज़ाबुन शदीद वमक्रु उलाइका हुवा यबूर वल्लाहु खलक़कुम मिन तुगाबिन थुम्मा मिन नुतफ़तिन थुम्मा जअलकुम अज़वाजा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तदअु इल्ला बिइल्मिह. Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very, very important segment of our program, because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse, and these verses become prominent on your television screen in Arabic calligraphic, as well as we translated or romanized these verses, particularly for those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this exercise, followed by Urdu and English translation, and in the end, inshallah, we also give you the brief explanation of these holy verses. So keep on watching this program and stay with us. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. In Urdu, बस न घुले आपकी जान उनके लिए फर्ते गम से, बेशक अल्लाह ताला खूब जानने वाला है जो करतूत वो किया करते हैं. In English, so let not your soul be gone away in regrets for them. Allah knows well whatever they do. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت
ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. और अल्लाह ताला वो है जो भेजता है हवाओं को, वो उठा लाती हैं बादल को, फिर हम ले जाते हैं बादल को मुर्दा शहर की तरफ, फिर हम जिंदा कर देते हैं उस बादल के में से ज़मीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद, यूं ही इन्हें कब्रों से उठाया जाएगा. And Allah is He who sends the winds that stir up clouds. Then we drive them to a dead land and give life to the earth therewith after its death. This is the rising up in the resurrection. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. In Urdu, जो इज्जत का तलबगार हो वो जान ले हर किस्म की इज्जत अल्लाह ताला के लिए है, उसी की तरफ चढ़ता है पाकीज़ा कलाम, और नेक अमल पाकीज़ा कलाम को बुलंद करता है. Whoever desires honor, then all honors belong to Allah. Towards Him ascend all pure words, and the righteous work does He exalt. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. In उर्दू, और जो लोग फरेबकारियां करते हैं बुरे कामों के लिए, उनके लिए शदीद अजाब है और उनका मक्र फरेब तबाह होकर रहेगा. In English, and those who plot evils, for them is the severe torment, and the plotting of these only will perish. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. In उर्दू, और अल्लाह ताला ने पैदा किया है तुम्हें मिट्टी से, फिर पानी की बूंद से, फिर तुम्हें बना दिया जोड़े जोड़े, और नहीं हामिला होती कोई औरत और न बच्चा जनती है मगर उसको इसका इल्म होता है. In English, and Allah created you from dust,
then from a sperm drop, then made you pairs. And no female bears, nor she gives birth, but with his knowledge. नाज़रीन किराम, हमारा आज का सबक अपने इख्ताम को पहुँचा। इन आयात का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला एक अजीब अंदाज़ महबूबी से फरमा रहा है। इरशाद होता है, फ़ला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, कि ए प्यारे आप अपने नफ्स को, अपनी जान को मत भुलाइए। ये कुफ़ार व मुशरिकीन जो शिरक कर रहे हैं, ईमान की तरफ नहीं आते, अपनी जान पर हलाकत नाजिल कर रहे हैं, तो आप गमगीन मत हो। यकीनन इनको देखना हमारा काम है, आपका काम है। इनको हिदायत के रास्ते की तरफ बुलाइए, इनको अल्लाह के रास्तों की तरफ बुलाइए, इनको हमारा कलमा सुनाइए, पढ़ पढ़ कर सुनाइए। इनको बताइए कि अगर तुम्हें पनाह मिल सकती है तो कमली मुस्तफ़ा में मिल सकती है। इनको आप बुलाइए, जो आपका काम है वो आप कीजिए, और हमारा काम अगर ये ईमान नहीं लाया, अज़ाब देना है, हम करके रहेंगे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहा है, और फिर एविडेंस दी जा रही है कि आपका काम है, इनको दलील दीजिए। वल्लाहुल्लज़ी अरसला रियाह फतसीरु सहाबन फयबसुतुहु फिस समा फसुक़नाहु इला बलदिन मय्यतिन फअहयैना बिहिल अर्द बअद मौतिहा कज़ालिकन नुशूर, कि इनको बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला ही तो है जो हवाओं को भेजता है, अल्लाह ही तो है जो बादलों को हंकाता है, और वो बादल ज़मीन पर बरसते हैं तो मुर्दा ज़मीन ज़िंदा हो जाती है, और फिर जब वो ज़िंदा होती है उसमें बीज फटते हैं, और बीजों से फिर पौधे निकलते हैं, फिर तने बनते हैं, और तने फलदार दरख्त बनकर फल दे दिया करते हैं। गल्ला अनाज तुम्हें मिला करता है, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ही है जो आसमानों से बारिश नाजिल करता है, ज़मीन से उसका इंसान का रिज़्क़ निकालता है। तो ज़मीन इससे पहले मुर्दा थी, जब आसमान से बारिश होती है तो उसमें से ज़िंदगी के आसार नमूदार हो जाते हैं। तो यकीनन वह मुर्दा ज़मीन जिसको ज़िंदा रब करता है, जब इतनी बड़ी ज़मीन को ज़िंदा कर देता है, तो तुम तो महज 5-6 फीट के हुआ करते हो, तुम्हें दोबारा ज़िंदा करना अल्लाह के लिए कौन सी बड़ी बात है। लिहाजा ये एक अज़ीम शान दलील थी जो कुफ़ार और मुशरिकीन लाजवाब होकर रह जाया करते थे, और बहुत से मशहूर होकर ये कहते थे कि बेशक ये एक आला कलाम है जो न जुनू है, न फ़रेब है, न जादू है, न शार है, न कहानत है। यकीनन ये किसी आला ज़ात का कलाम है। ये कहते थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर उनके कुफ़ार आपस में बैठकर मीटिंगें किया करते थे। बड़े बड़े सरदार कहते थे कि नहीं जनाब, ये हक़ नहीं है, हाँ ये हक़ नहीं होगा, शायद हम पे जादू कर दिया गया है। वो इस किस्म की वो गुफ्तगू हुआ करती थी। लिहाजा अल्लाह ने अपनी तौहीद की दलील यहाँ पर आसमान और ज़मीन के निज़ाम से दी है, और फिर उसके बाद फरमाता है कि इज़्ज़त वाला अल्लाह तबारक व तआला है, इसलिए कि रिज़्क़ वो देता है, हयात तुम्हें वो देता है, फल गल्ला गंदुम वो तुम्हें देता है, जीने के असबाब वो तुम्हें देता है। तो यकीनन इज़्ज़त वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूली, इज़्ज़त तो अल्लाह की है, उसके रसूल की। तुम जो बड़े बड़े इज़्ज़त के ठेकेदार बन गए हो, इज़्ज़त का हक़दार फ़कत रब्बे करीम है। और फिर एक और दलील दी जा रही है, वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन थुम्मा मिन नुतफ़तिन थुम्मा जअलकुम अज़वाजा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तदउ इल्ला बिइल्मिही। अल्लाह फरमाता है कि जिस तरह देखो कि तुम्हें ज़मीन को दोबारा ज़िंदा करता है, तुम्हें भी दोबारा ज़िंदा करेगा। और फिर फरमाया कि ये भी बताओ तुम्हें इस दुनिया में पैदा कौन करता है। वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराब, अल्लाह तबारक व तआला ही है जो तुम्हें मट्टी से पैदा करता है, नुतफ़े की शक्ल देता है, और उस नुतफ़े से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक मुक़र्ररा मियाद पर इस दुनिया में पैदा कर देता है। तुम तो हालत आदम में थे, तुम्हें कोई नहीं जानता था, वही रब्बे करीम है जिसने तुम्हें आदम से वजूद अता फरमाया। तो अल्लाह फरमाता पैदा भी मैं ही तुम्हें क्या करता हूँ, दोबारा पैदा कर डालूंगा। और ये मत समझना कि माँ के जो बतन में जो बच्चा होता है अल्लाह को इल्म नहीं, अल्लाह फरमाता वला तदउ इल्ला बिइल्मिही, कि वो सब का सब अल्लाह के इल्म में होता है, इसलिए कि खालिक के इल्म से कोई चीज़ बाहर नहीं हुआ करती। ये अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के अजीम दलाइल हैं कि जिनको अगर इंसान थोड़ी देर सोच कर, खड़े होकर सोचे, बैठ कर सोचे, थोड़ी देर तहम्मुल के साथ बिल्कुल न्यूट्रलाइज होकर अगर इनको तहकीक करे, सोचे, समझे, तो फिर एक नुक्ता बहरहाल उसके जहन में ज़रूर आएगा कि देयर इज़ अ गॉड, यकीनन अल्लाह है, कोई खालिक है। और बेहतरीन खालिक कौन सा है? दुनिया के सारे लोग जो जिन्होंने आए, चाहे वो अहलियाने किताब हों, चाहे वो बुद्धिस्ट हों, चाहे वो और किसी मज़हब के फॉलोअर हों, ये देखिए कि अगर खुदा है तो बेहतरीन तालीमात किसकी है?
उन तमाम लोगों में अगर बेहतरीन तालीम उसे किसी की मिलेगी तो यकीनन हमारे नबी की मिलेगी। लिहाजा वह इख्तियार कहेगा कि बेशक मैं ईमान लाता हूँ, नबी पर लाता हूँ और नबी के खुदा पर ईमान लाता हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें तअक्कुल, तफक्कुर, तदब्बुर की सलाहियत और उसके साथ साथ उस सलाहियत से इस्तिफादा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।